Principal sir, Vice Principal sir, and all dear my friends. Good morning from the core of my heart. Today my topic belong to assessment and evaluation. Assessment means आकलन and then after evaluation means मूल्यांकन. Assessment other words belongs to judgment and next word belong to estimation and third is belong to appraisal and fourth words belong to rating and third next and last words belong to analysis and then after evaluation words other words belongs to consideration and then after ranking. First of all, I would like to call in training house all of you. I would like to tell you about a assessment and evaluation. Assessment is a process of collecting, reviewing, and gaining account of data is in the form of information and in the current appearance of the maker is called assessment and while evaluation is a process of passing data on the basis of defined oriented and evidence is called evaluation. I mean to say that आकलन और मूल्यांकन एक दूसरे के प्रमुख स्रोत हैं जिसके माध्यम से बच्चे की अभिव्यक्ति, बच्चे की क्षमता, बच्चे की अनुभूति के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं. आकलन जो होती है वो एक शॉर्ट प्रक्रिया होती है बल्कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है. And next point is that there are some rules for assessment and evaluation. According to me, in my view, assessment belongs to diagnostic, but evaluation belongs to judgmental. Second point is that assessment belongs to formative and while evaluation belongs to summative. And third point is that assessment belongs to reflective while evaluation belongs to prescriptive. And fourth point is that assessment is absolute and evaluation is belong to comparative. And next and last, assessment belongs to process oriented whereas evaluation belongs to product oriented. Just I would like to tell you about there are two types of assessment. First is that AK and second is that essay. AK equal to formative assessment into Hindi रचनात्मक अवलोकन आकलन and then after second is that summative assessment into Hindi गुणात्मक आकलन. To measure during the study time. अब in my question in this time, what is FA? यानी formative assessment क्या है? To measure about a study time या during the study time, that is called FA. जो हम पढ़ने के दौरान जो भी प्रक्रिया को अपनाते हैं, that is called हम उसको रचनात्मक के नाम से जानते हैं. And then after second is that summative. जो study to measure the at the end of year in the month, that is called summative. जो भी study यानी साल के अंत में हम जिसका मूल्यांकन करते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, तो हम उसको summative के नाम से जानते हैं. Okay, just I would like to say a VT about a teacher. Teaching is the process that teaches all the other professions. Second point is that education is the key lasting impact in the lives of their students. Third point is that a good education can change anyone, but a good teacher can change everybody. Fourth is that teaching is not a job; it's a lifestyle. It permanents your whole life. And fifth is that a good teaching is like a candle. It's consumed
itself to light the way for others. And next and last, students don't care how much you care, you know, until they know how much you care. Okay, just I would like to tell you about a witty means चुटकुला. अभी हम आप लोग को एक चुटकुला सुनाने जा रहे हैं. So listen to me carefully. Only को look on the blackboard. मैं you want sir मिटा सकते हैं? Once upon a time, एक समय की बात है, एक वुड कटर मीन्स लकड़हारा. वुड मीन्स लकड़ी और कटर मीन्स काटने वाला. लकड़ी को काट काट कर जो काटा करता है उसको हम बोलते हैं वुड कटर. यानी मेरा दो वर्ड बनता है प्रोफेशन. प्रोफेशन. अब सेम प्रोसेस है. व्हाट इज प्रोफेशन? पेशा क्या है? हम जो भी काम करते हैं और जिस एवज में मुझे पैसा इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम प्रोफेशन के नाम से जानते हैं. हम कुछ भी काम करें, अगर उसके एवज में इनकम नहीं होता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड ऑफ प्रोफेशन. उसको हम प्रोफेशन के नाम से नहीं जान सकते. टेक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम अपने घर पर पढ़ाते हैं, उसके एवज में मुझे पैसा नहीं आता है तो मेरा प्रोफेशन नहीं है. प्रोफेशन मीन्स पैसा. प्रोफेशन मीन्स इनकम. यानी जब हम किसी से आमदनी आता है किसी भी काम को करने से, दैट इज कॉल्ड, किसके नाम से जानते हैं? प्रोफेशन के नाम से जानते हैं. Once upon a time, एक समय की बात है, एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया और जंगल में काटते काटते कुछ दिनों के बाद जितने भी सारी पेड़ की जंगल में वो सब ही समाप्त हो गए. वो सब के सब क्या हो गए? समाप्त. एक लास्ट पेड़ बचा जंगल के और नदी के बैंक मतलब किनारे के पास. वो गया और चढ़ कर काट रहा था, खुदा न खास्ते यानी बाई चांस इत्तेफाक से उसकी जो कुल्हाड़ी, यानी एक्स मिस बोलते हैं कुल्हाड़ी, एक्स, उसकी जो कुल्हाड़ी थी बाई द चांस उसकी कुल्हाड़ी गिर गई क्या? पानी में. कुछ देर के बाद वो गया और पानी में डूबा. बहुत देर ढूंढने के बाद वो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नहीं मिली. वो जोर से रोने लगा. तभी गंगा माँ प्रकट हुई, बोले बेटे अब किस लिए रो रहा है? तो उसने बोला माँ मेरी इस बात को आप लोग गौर करेंगे, लोहे की टंगली. किसकी टंगली? लोहे की. बोला माँ मेरी एक टंगली है जो लोहे की, इसमें गुम हो गई. बोलिए बेटे इतने से छोटी बात के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल शट अप योर आई. तुम आंख को बंद करो. आंख को बंद किया त्यों तक तुम्हारी तब तक आ गया चांदी का. ये भी चांदी का आया मिस सिल्वर. जब भी चांदी का आया तुरंत और जोर से रोने लगा. तब माँ पूछी बेटे अब किस लिए रो रहा है? तब बोला उसे मैं बोल रहा था नहीं माँ जब लेंगे तो हम अपना वाला ही टंगली लेंगे. माँ पूछ गई, समझ गई कि ये थोड़ा सा अभी समझी नहीं, बाद में फिर एक पॉइंट है. फिर उसके बाद बोली कि ठीक है बेटे नेक्स्ट टाइम तुम अपने आप को क्या करो? बंद करो. जेवी नेक्स्ट टाइम जब बंद किया तब तक आ गया सोना का. जेवी सोना का आया उसके जस्ट बाद और जोर से रोने लगा. जेवी सोना का देखा जोर से रोने लगा. जब एक उस हमेशा एक ही डायलॉग मारता था, नहीं मां जब लेंगे तो हम अपना वाला ही लेंगे. माँ बोली ठीक है बेटे नेक्स्ट एंड लास्ट आई को बंद करो. नेक्स्ट एंड लास्ट जब भी बंद करवाया तब तक गंगा माँ ने प्रकट कर दी. फिर उसकी वाला टंगली आ गया. किसका टंगली? लोहे. जेवी लोहे का टंगली उसको मिला, वो बहुत खुशी गया और उठाकर वहां से जाने लगा. कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ? माँ समझ गई थी बहुत ईमानदार है, इसलिए रुकवाई. सुनो बेटा सुनो इधर. मैं समझ गई कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारी ईमानदारी के नाते मैं तुम्हें दो टंगली यानी गिफ्ट में देता हूं. किसमें देता हूं? गिफ्ट में. एक आपका चांदी का, एक कौन चीज का? सोने का, क्योंकि लोहा का तो अपना था. और ये सारी बातें जाकर अपनी कहानी अपनी मैडम यानी वाइफ से बोला. और थोड़ा सा मेरे अनुसार वाइफ थोड़ा सा ग्रीडी टाइप की होती है. यानी दैट इज कॉल्ड लालची, लोभी या लियोर भी बोल सकते हैं. इसके लिए आप दूसरा वर्ड लियोर भी बोल सकते हैं, तीसरा वर्ड इंटाइस भी लगा सकते हैं. ग्रीडी टाइप की होती है, यानी ओवर ग्रीडी होती है.
इंटाइस, लियो, सबका मतलब होता है। ये सारी बातें जाकर कहानियां अपनी पत्नी से सुनाया। जेवी पत्नी सारी कहानियां को सुनी, वह पूरा एक्साइटेड थी कब सुबह हो कि हम भी चले वहां कुछ और मिल जाए। और जेवी अभी डाउन में सुता DAWN, जब भी भोर हुआ उसके बाद तुरंत टोंगली ली, उसका हस्बैंड सोया हुआ था और लेकर चले गए उस पेड़ के पास और उस पेड़ पर चढ़ गई। खुदा ना खास्ते औरत तो पेड़ पर चढ़ती नहीं है। बाय द वे वहीं उसमें गिर गई, पानी में जेवी गिरी और उसमें गुम हो गई। जेवी गुम हो गई, तभी सुबह को लकड़हारा उठा तो देखा कि मेरी वाइफ नहीं है। अगल बगल ढूंढा, फिर अगल बगल से पूछा, अपने पड़ोसी से पूछा, आपने मेरी वाइफ को देखा है? उस सब ने बता दिया कुछ हमने देखा होगा। कहाँ देखे थे? टोंगली लेकर जा रही थी। समझ गया बंदा की कहानी क्या है। और जाकर फिर गया उसी पेड़ के पास जहां से इसको सोने के टोंगले और चांदी का टोंगले मिला हुआ गया और पानी में ढूंढने लगा। जेवी ढूंढ रहा था, फिर माँ प्रकट हुई, बोली अब बेटी किस लिए रो रहा है, क्या ढूंढ रहा है? तो बोला माँ पहली बार तो मेरी टोंगली गुम हो गई थी, अब की बार मेरी वाइफ भी गुम हो गई है। ये बोली, माँ बोली क्या लगा रखा है, कभी टोंगली गुम करवाता है, कभी वाइफ को। ठीक है, अपने आंख को बंद करो। माँ तो माँ होती है और गंग। उसी समय आलिया भट्ट आ गई। आंख बंद की और बोली कि आलिया भट्ट आ गई। उसने देखा तो बोला ना ना ना, ये मेरी वाइफ नहीं। और गंगा माँ तो समझती थी इसकी पूरी हरकतों को। उसके बाद बोली ठीक है बेटे, फिर सेकेंड टाइम आंख बंद करो। सेकेंड टाइम बंद किए, तब तक ऐश्वर्या बच्चन आ गई। ऐश्वर्या बच्चन आ गई। जब ऐश्वर्या बच्चन आई तब तक बोलता है हाँ यही मेरी वाइफ है। माँ कंफ्यूजन में हो गई। माँ बोली कि इसके जैसा तो मैं बहुत सारा ऐश्वर्या राय बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ईमानदारी के नाते मैंने तुम्हें पहले 2 टोंगलियां गिफ्ट में दिया था, फिर इस समय तुमने दूसरे की वाइफ को कैसे बोल दिया कि ऐश्वर्या राय ही मेरी पत्नी है? तो बोले, उसने बताया, लकड़हारा ने बोला माँ ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए सपोर्ट डेट अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट करता ऐश्वर्या राय को, तो फिर थर्ड पॉइंट में आप मेरी वाली पत्नी को लाते, तो आप में ईमानदारी के नाते हम इसको लेकर अपनी पत्नी को जाते, तो आप वो फिर पति, आप तो बहुत ईमानदार हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी के नाते 2 पत्नियां गिफ्ट में देता हूं। एक पत्नी को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, 3 पत्नियां तो कहां से खिलाऊंगा, इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती से दूसरे को पत्नी को क्या बोल दिया, मेरी पत्नी। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। There are some rules for difference between assessment and evaluation are discussed here. First is that assessment is concerned with process. Assessment जो होती है यानी आकलन जो होती है वो एक प्रक्रिया होती है, and while evaluation are the focus on product. And second point is that as the process of assessment is formative to increase quality, while evaluation is all judging about the quality, therefore process of summative. And third point is that assessment is diagnostic in nature, as it intends to identify areas to improvement, and evaluation is judgment because it aims at provide overall grading. And fourth point is that assessment provides feedback on performance and ways to enhance performance in future. And after that, whether evaluation as certain whether the standards met or not. Next and last point, in assessment the feedback based on the observation and feedback based on negative points and positive points, while evaluation in which the feedback relies on the guilty. As you noted before time, there are 2 types of assessment. First is that
FA and second is that SA. There are some rules for assessment of learning is called summative assessment, and second is that assessment for learning is called formative assessment. यानी सीखने के लिए सीखने का आकलन, and third point is that belong to assessment as learning is equal to self assessment, सीखने के रूप में. Now I would like to call about CCED in the full form सतत मूल्यांकन और व्यापक. राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के अनुसार सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू में शामिल है, जो शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए तत्पर होता है. ये इवैल्यूएशन जो है आपका असेसमेंट यानी आकलन जो होता है आपका क्वांटिटी होता है, जबकि इवैल्यूएशन जो होता है आपका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरफ से होता है. नेक्स्ट है मूल्यांकन की विशेषता. मूल्यांकन की विशेषता वैलिडिटी. वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात को परीक्षण करे जिसके बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं. इसमें आ जाता है आपको विश्वसनीयता आ जाता है, जिसको रियलिटी भी बोल सकते हैं. विविध परंतु एक ऐसी परिस्थितियों में है जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं तथा उसका उत्तर हम अपने बच्चे से पूछ सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दैट प्रैक्टिकली. मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जो लगातार समय में प्रयोग सरलता की दृष्टि से किया जाता है और व्यवहारिक कुशल होती है. वस्तुनिष्ठ यानी नेक्स्ट है पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो वह एक प्रकार की फाइल है जिसके माध्यम से बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कामों को हम कलेक्शन करके उसको उसके बारे में क्या करते हैं, बतलाते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज दैट इसमें बच्चों की उपलब्धियां, प्रगति और कमियां को भी रखा जाता है. किसके माध्यम से? पोर्टफोलियो का. एंड थर्ड पॉइंट इज दैट पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती है. बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके ग्रेडिंग के बारे में भी हम पोर्टफोलियो के माध्यम से भी जान सकते हैं. एंड देन क्या होता है, क्या पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बता चुके हैं. पोर्टफोलियो बात में समझ लीजिए. बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का एक उद्देश्य होता है. बच्चों के इस पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चा क्या उसमें आगे की तरफ प्रोग्रेस है कि नहीं. अगर बच्चे की तरफ आगे की प्रोग्रेस है तो उसको ग्रेडिंग के माध्यम से हम बच्चे को समझा सकते हैं. अगर कोई अच्छा प्रतिभाशाली है जिसका IQ अगर 80 से नीचे है तो उसको नॉर्मल में रख सकते हैं. अगर 120 से अगर ऊपर हो तो उसको हम प्रतिभाशाली यानी ब्रिलियंट के माध्यम से उसको रख सकते हैं. इस सब को जानने के लिए हमको सबसे पहले पोर्टफोलियो को बनाना जरूरी होता है. अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर रिकॉर्ड. नाउ पॉइंट बिलोंग टू रिकॉर्ड. इसमें बच्चे सभी तरह के रिकॉर्ड रखे हैं. बच्चे का सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं. उसका बिहेवियर क्या है, उसका स्किल यानी हुनर क्या है, एंड देन आफ्टर एटीट्यूड उसका रवैया क्या है, और देन आफ्टर उसके बाद वो कैसा बिहेवियर करता है, अच्छे अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है कि नहीं करता है. इसको रिकॉर्ड के मामले से हम जान सकते हैं. That's all. That's enough for today. Many thanks all of you. In the form of informants and in the appearance of the maker is called assessment. And while evaluation is a process of passing data on the basis of defined oriented and evidence is called evaluation. I need to say that आकलन और मूल्यांकन एक दूसरे के प्रमुख स्रोत हैं जिसके माध्यम से बच्चे की अभिव्यक्ति, बच्चे की क्षमता, बच्चे की अनुभूति के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं. आकलन जो होती है वो एक शॉर्ट प्रक्रिया होती है, बल्कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
there are some rules for assessment and evaluation. According to me, yeah, in my view, assessment belongs to diagnostic, but evaluation belongs to judgmental. Second point is that assessment belongs to formative, and while evaluation belongs to summative. And third point is that assessment belongs to reflective, while evaluation belongs to prescriptive. And fourth point is that assessment is absolute, and evaluation is belong to comparative. And next and last, assessment belongs to process oriented, whereas evaluation belong to product oriented. Just I would like to tell you about, there are two types of assessment. First is that AP, and second is that essay. AP equal to formative assessment into Hindi रचनात्मक अवलोकन आकलन, and then after second is that summative assessment into Hindi गुणात्मक आकलन. To measure during the study time. In my question in this time, what is FA? Any formative assessment क्या है? To measure about a study time या during the study time, that is called FA. जो हम पढ़ने के दौरान जो भी प्रक्रिया को अपनाते हैं, that is called, हम उसको रचनात्मक के नाम से जानते हैं. And then after second is that summative. जो study to measure at the end of year in the month, that is called summative. जो भी study यानी साल के अंत में हम जिसका मूल्यांकन करते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, तो हम उसको summative के नाम से जानते हैं. Okay, just I would like to say a VT about a teacher. Teaching is the process that teaches all the other professions. Second point is that education is the key lasting impact in the lives of their students. Third point is that a good education can change anyone, but a good teacher can change everybody. Fourth is that teaching is not a job; it's a lifestyle. It permanents your whole life. And fifth is that a good teaching is like a candle. It's consume itself to light the way for others. And next and last, students don't care how much you care, until they know how much you care. Okay, just I would like to tell you about a VT means चुटकुला. अभी हम आप लोग को एक चुटकुला सुनाने जा रहे हैं. So listen to me carefully. Only को look on the blackboard. मैं ये वाइट सर मिटा सकते हैं? Once upon a time, एक समय की बात है, एक वुड कटर मीन्स लकड़हारा. वुड मीन्स लकड़ी और कटर मीन्स काटने वाला. लकड़ी को काट कर जो इकट्ठा करता है उसको हम बोलते हैं वुड कटर. यानी मेरा दो वर्ड बनता है प्रोफेशन. अब सेम प्रोसेस है. व्हाट इज प्रोफेशन? पेशा क्या है? हम जो भी काम करते हैं और जिस एवज में मुझे पैसा इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम प्रोफेशन के नाम से जानते हैं. हम कुछ भी काम करें, अगर उसके एवज में इनकम नहीं होता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ प्रोफेशन. उसको हम प्रोफेशन के नाम से नहीं जान सकते. टेक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम अपने घर पर पढ़ाते हैं, उसके एवज में मुझे पैसा नहीं आता है, तो मेरा प्रोफेशन नहीं है. प्रोफेशन मीन्स पैसा, प्रोफेशन मीन्स इनकम. यानी जब हम किसी से आमदनी आता है किसी भी कार्य को करने से, दैट इज कॉल्ड, किसके नाम से जानते हैं? प्रोफेशन के नाम से जानते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया और जंगल में काटते कुछ दिनों के बाद जितने भी सारी पेड़ थी जंगल में, वो सब भी समाप्त हो गए. वो सब के सब क्या हो गए? समाप्त. एक लास्ट पेड़ बचा जंगल के और नदी के बैंक पे. बैंक मतलब किनारे के पास.
वो गया और चढ़ कर काट रहा था, खुदा न खास्ते यानी बाई चांस इत्तेफाक से उसकी जो कुल्हाड़ी यानी एक्स मिस बोलते हैं कुल्हाड़ी, एक्स उसकी जो कुल्हाड़ी थी बाई द चांस उसकी कुल्हाड़ी गिर गई क्या पानी में। कुछ देर के बाद वो गया और पानी में ढूंढा, ढूंढने के बाद बहुत देर ढूंढने के बाद वो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नहीं मिली। वो जोर जोर से रोने लगा। तभी गंगा माँ प्रकट हुई, बोली बेटे अब किस लिए रो रहा है? तो उसने बोला माँ मेरी एक इस बात को आप लोग गौर करेंगे, लोहे की कंगनी। किसकी कंगनी? लोहे की। बोला माँ मेरी एक कंगनी है जो लोहे की इसमें गुम हो गई। बोली बेटे इतने से छोटी बात के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल शट अप योर आई, तुम आंख को बंद करो। आंख को बंद किया त्यों तक तुम्हारी तब तक आ गया चांदी का। ये भी चांदी का आया मिस सिल्वर। जब भी चांदी का आया तुरंत और जोर से रोने लगा। तब माँ पूछी बेटे अब किस लिए रो रहा है? तब बोला उस समय बोल रहा था नहीं माँ जब लेंगे तो हम अपना वाला ही टंगली लेंगे। माँ बुझ गई, समझ गई कि ये थोड़ा सा अभी समझी नहीं, बाद में फिर एक पॉइंट है। फिर उसके बाद बोली कि भी ठीक है बेटे नेक्स्ट टाइम तुम अपने आप को क्या करो बंद करो। ये भी नेक्स्ट टाइम जब बंद किया तब तक आ गया सोना का। ये भी सोना का आया, उसके जस्ट बाद और जोर जोर से रोने लगा। ये भी सोना का देखा, जोर जोर से रोने लगा। जब एक उस हमेशा एक ही डायलॉग मारता था नहीं माँ जब लेंगे तो हम अपना वाला ही लेंगे। माँ बोली ठीक है बेटे नेक्स्ट एंड लास्ट आई को बंद करो। नेक्स्ट एंड लास्ट जब भी बंद करवाया तब तक गंगा माँ ने प्रकट कर दी। फिर उसकी वाला टोंगली आ गया। किसका टोंगली? लोहे। जे भी लोहे का टोंगली उसको मिला वो बहुत खुशी गया और उठाकर वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, माँ समझ गई कि बहुत ईमानदार है इसलिए रुकवाई। सुनो बेटा सुनो इधर, मैं समझ गई कि तुम बहुत ईमानदार हो इसलिए तुम्हारी ईमानदारी के नाते मैं तुम्हें दो टोंगली यानी गिफ्ट में देता हूं। किसमें देता हूं? गिफ्ट में। एक आपका चांदी का, एक कौन चीज का? सोने का, क्योंकि लोहा का तो अपना था। और ये सारी बातें जाकर अपनी कहानी अपनी मैडम यानी वाइफ से बोला। और थोड़ा सा मेरे अनुसार वाइफ थोड़ा सा ग्रेडी टाइप की होती है यानी दैट इज कॉल्ड लालची, लोभी या लियोर भी बोल सकते हैं। इसके लिए आप दूसरा वर्ड लियोर भी बोल सकते हैं, तीसरा वर्ड इंटाइस भी लगा सकते हैं। ग्रीडी टाइप की होती है यानी ओवर ग्रीडी होती है। इंटाइस, लियोर सबका मतलब होता है। ये सारी बातें जाकर कहानी अपनी पत्नी से सुनाया। जे भी पत्नी सारी कहानियां को सुनी वो पूरा एक्साइटेड थी कब सुबह हो कि हम भी चले वहां कुछ और मिल जाए। और जे भी अभी डाउन मिस होता है DAWN। जब भी भोर हुआ उसके बाद तुरंत टोंगली ली, उसका हस्बैंड सोया हुआ था और लेकर चले गए उस पेड़ के पास और उस पेड़ पर चढ़ गए। खुदा ना खास्ते औरत तो पेड़ पर चढ़ती नहीं है। बाय द वे वहीं उसमें गिर गई, पानी में जेवी गिरी और उसमें गुम हो गई। जेवी गुम हो गई। तभी सुबह को लकड़हारा उठा तो देखा कि मेरी वाइफ नहीं है। अगल बगल ढूंढा, फिर अगल बगल से पूछा, अपने पड़ोसी से पूछा आपने मेरी वाइफ को देखा है? उस सब ने बता दिया कुछ हमने देखा होगा था, हाँ देखे थे टोंगली लेकर जा रही थी। समझ गया बंदा की कहानी क्या है। और जाकर फिर गया उसी पेड़ के पास जहां से इसको सोने के टोंगली और चांदी का टोंगली मिला हुआ। गया और पानी में ढूंढने लगा। जे भी ढूंढ रहा था फिर माँ प्रकट हुई, बोली अब बेटी किस लिए रो रहा है, क्या ढूंढ रहा है? तो बोला माँ पहली बार तो मेरी टोंगली गुम हो गई थी, अब की बार मेरी वाइफ ही गुम हो गई है। ये बोली माँ बोली क्या लगा रखा है, कभी टोंगली गुम करवाता है कभी वाइफ को। ठीक है अपने आंख को बंद करो। माँ तो माँ होती है और गंग। उसी समय आलिया भट्ट आ गई। आंख बंद की और बोली कि आलिया भट्ट आ गई। उसने देखा तो बोला ना 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 ये मेरी वाइफ नहीं। और गंगा माँ तो समझती थी इसकी पूरी हरकतों को। उसके बाद बोली ठीक है बेटे फिर सेकेंड टाइम आंख बंद करो। सेकेंड टाइम बंद किए तब तक ऐश्वर्या बच्चन आ गई। ऐश्वर्या बच्चन आ गई।
जब भी ऐश्वर्या बच्चन आई तब तक होता है हाँ यही मेरी वाइफ है। माँ कंफ्यूजन में हो गई। माँ बोली कि इसके जैसा तो मैं बहुत सारा ऐश्वर्या राय बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ईमानदारी के नाते मैंने तुम्हें पहले 2 टंगिया गिफ्ट में दिया था, फिर इस समय तुमने दूसरे की वाइफ को कैसे बोल दिया कि ऐश्वर्या राय ही मेरी पत्नी है? तो बोले, उसने बताया, लकड़हारा ने बोला माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए सपोर्ट डेट अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट करता ऐश्वर्या राय को, तो फिर 3rd पॉइंट में आप मेरी वाली पत्नी को लाते, तो आप में ईमानदारी के नाते हम इसको लेकर अपनी पत्नी को जाते, तो आप वो फिर कहती आप तो बहुत ईमानदार हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी के नाते 2 पत्नियां गिफ्ट में लेता हूं। एक पत्नी को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, 3 पत्नियां तो कहां से खिलाऊंगा, इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती से दूसरे को पत्नी को क्या बोल दिया, मेरी पत्नी। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा सांस ले लीजिए। There are some rules for difference between assessment and evaluation are discussed here. First is that assessment is concerned with process. Assessment जो होती है यानी आकलन जो होती है वो एक प्रक्रिया होती है, and while as evaluation are the focus on product. And second point is that as the process of assessment is formative to increase quality, while evaluation is all judging about the quality, therefore process of summative. And third point is that assessment is diagnostic in nature, as it intends to identify areas to improvement, and evaluation is judgment because it aims at provide overall grading. And fourth point is that assessment provides feedback on performance and ways to enhance performance in future. And after that, whether evaluation as certain whether the standards met or not. Next and last point, in assessment the feedback based on the observation and feedback based on negative points and positive points, while evaluation in which the feedback relies on the guilty. As you noted before time, there are 2 types of assessment. First is that FA and second is that SA. There are some rules for assessment of learning is called summative assessment, and second is that assessment for learning is called formative assessment. यानी सीखने के लिए सीखने का आकलन, and third point is that belong to assessment as learning is equal to self assessment सीखने के रूप में. Now I would like to call about CCEB in the full form सतत मूल्यांकन और व्यापक. राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के अनुसार सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू में शामिल है, जो शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए तत्पर होता है. ये इवैल्यूएशन जो है आपका असेसमेंट यानी आकलन जो होता है आपका क्वांटिटी होता है, जबकि इवैल्यूएशन जो होता है आपका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरफ से होता है. नेक्स्ट है मूल्यांकन की विशेषता. मूल्यांकन की विशेषता वैलिडिटी. वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात को परीक्षण करे जिसके बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं. इसमें आ जाता है आपको विश्वसनीयता आ जाता है, जिसको रियलिटी भी बोल सकते हैं. विविध परंतु एक ऐसी परिस्थितियों में है जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं तथा उसका उत्तर हम अपने बच्चे से पूछ सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दैट प्रैक्टिकली मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जो लगातार समय में प्रयोग सरलता की दृष्टि से किया जाता है और व्यवहारिक कुशल होती है. वस्तुनिष्ठता यानी नेक्स्ट है
पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो वह एक प्रकार की फाइल है जिसके माध्यम से बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कामों को हम कलेक्शन करके उसको उसके बारे में क्या करते हैं, बतलाते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज दैट इसमें बच्चों की उपलब्धियां, प्रगति और कमियां को भी रखा जाता है, किसके माध्यम से, पोर्टफोलियो का। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके ग्रेडिंग के बारे में भी हम पोर्टफोलियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। एंड देन क्या होता है, क्या पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो, बता चुके हैं, ठीक है, बता चुके हैं आप। पोर्टफोलियो बात में समझ लीजिए। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का एक उद्देश्य होता है। बच्चों के इस पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चा क्या उसमें आगे की तरफ प्रोग्रेस है कि नहीं। अगर बच्चे की तरफ आगे की प्रोग्रेस है तो उसको ग्रेडिंग के माध्यम से हम बच्चे को समझा सकते हैं। अगर कोई अच्छा प्रतिभाशाली है जिसका आईक्यू अगर 80 से नीचे है तो उसको नॉर्मल में रख सकते हैं। अगर 120 से अगर ऊपर हो तो उसको हम प्रतिभाशाली यानी ब्रिलियंट के माध्यम से उसको रख सकते हैं। इस सब को जानने के लिए हमको सबसे पहले पोर्टफोलियो को बनाना जरूरी होता है। अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर रिकॉर्ड, नाउ पॉइंट बिलोंग टू रिकॉर्ड। इसमें बच्चे सभी तरह के रिकॉर्ड रखते हैं। बच्चे का सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, उसका स्किल यानी हुनर क्या है, एंड देन आफ्टर एटीट्यूड उसका रवैया क्या है, और देन आफ्टर उसके बाद वो कैसा बिहेवियर करता है, अच्छे अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है कि नहीं करता है, इसको रिकॉर्ड के मामले से हम जान सकते हैं। That's all. That's enough for today. Many thanks all of you. And then after evaluation words, other words belongs to consideration, and then after ranking. First of all, I would like to call in training house all of you. I would like to tell you about a assessment and evaluation. Assessment is a process of collecting, reviewing, and gaining account of data is in the form of information and in the current appearance of the maker is called assessment. And while evaluation is a process of passing data on the basis of defined oriented and evidence is called evaluation. I need to say that आकलन और मूल्यांकन एक दूसरे के प्रमुख स्रोत हैं जिसके माध्यम से बच्चे की अभिव्यक्ति, बच्चे की क्षमता, बच्चे की अनुभूति के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। आकलन जो होती है वो एक शॉर्ट प्रक्रिया होती है, बल्कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है। And next point is that there are some rules for assessment and evaluation. According to me, yeah, in my view, assessment belongs to diagnostic, but evaluation belongs to judgmental. Second point is that assessment belongs to formative, and while evaluation belongs to summative. And third point is that assessment belongs to reflective, while evaluation belongs to prescriptive. And fourth point is that assessment is absolute and evaluation is belong to comparative. And next and last, assessment belongs to process oriented, whereas evaluation belong to product oriented. Just I would like to tell you about, there are two types of assessment. First is that AP, and second is that essay. AP equal to formative assessment into हिंदी रचनात्मक अवलोकन आकलन, and then after second is that summative assessment into हिंदी एगुणात्मक आकलन. Two major during the study time
अब इन माय क्वेश्चन इन दिस टाइम व्हाट इज एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? टू मेजर about a studying time या during the studying time that is called ये जो हम पढ़ने के दौरान जो भी प्रक्रिया को अपनाते हैं that is called हम उसको रचनात्मक के नाम से जानते हैं। and then after second is that summative जो study to measure the at the end of year in the month that is called summative जो भी स्टडी यानी साल के अंत में हम जिसका मूल्यांकन करते हैं जिसके बारे में जानते हैं तो हम उसको समेटिव के नाम से जानते हैं। ओके, जस्ट आई वुड लाइक टू से ए वीटी अबाउट ए टीचर। टीचिंग इज द प्रोसेस दैट teaches all the other professions. Second point is that education is the key lasting impact in the lives of their students. Third point is that a good education can change anyone, but a good teacher can change everybody. Fourth is that teaching is not a job; it's a lifestyle. It permanents your whole life. And fifth is that a good teaching is like a candle, it's consume itself to light the way for others. And next and last, students don't care how much you know until they know how much you care. Okay, just I would like to tell you about a witty means चुटकुला। अभी हम आप लोग को एक चुटकुला सुनाने जा रहे हैं। So listen to me carefully. Only को look on the blackboard. May I wipe sir? मिटा सकते हैं? Once upon a time, एक समय की बात है, एक वुड कटर मीन्स लकड़हारा, वुड मीन्स लकड़ी और कटर मीन्स काटने वाले, लकड़ी को काट कर जो भी काटा करता है उसको हम बोलते हैं वुड कटर। यानी मेरा दो वर्ड बनता है प्रोफेशन। अब सेम प्रोसेस है, व्हाट इज प्रोफेशन? पेशा क्या है? हम जो भी काम करते हैं और जिस एवज में मुझे पैसा इनकम होती है दैट इज कॉल्ड, उसको हम प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। हम कुछ भी काम करें अगर उसके एवज में इनकम नहीं होता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड ऑफ प्रोफेशन, उसको हम प्रोफेशन के नाम से नहीं जान सकते। टेक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम अपने घर पर पढ़ाते हैं, उसके एवज में मुझे पैसा नहीं आता है तो मेरा प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन मीन्स पैसा, प्रोफेशन मीन्स इनकम। यानी जब हम किसी से आमदनी आता है किसी भी कार्य को करने से दैट इज कॉल्ड, किसके नाम से जानते हैं? प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। Once upon a time, एक समय की बात है, एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया और जंगल में काटते कुछ दिनों के बाद जितने भी सारी पेड़ थी जंगल में वो सब ही समाप्त हो गए। वो सब के सब क्या हो गए? समाप्त। एक लास्ट पेड़ बचा जंगल के और नदी के बैंक मतलब किनारे के पास। वो गया और चढ़ कर काट रहा था, खुदा न खास्ते यानी बाई चांस इत्तेफाक से उसकी जो कुल्हाड़ी यानी एक्स मिस बोलते हैं कुल्हाड़ी, एक्स उसकी जो कुल्हाड़ी थी बाई द चांस उसकी कुल्हाड़ी गिर गई क्या? पानी में। कुछ देर के बाद गया और पानी में ढूंढने के बाद वो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नहीं मिली। वो जोर से रोने लगा। तभी गंगा माँ प्रकट हुई, बोली बेटे अब किस लिए रो रहा है? तो उसने बोला माँ मेरी इस बात को आप लोग गौर करेंगे, लोहे की कंगनी। किसकी कंगनी? लोहे की। बोला माँ मेरी एक कंगनी है जो लोहे की, इसमें गुम हो गई। बोली बेटे इतनी सी छोटी बात के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल शट अप योर आई, तुम आंख को बंद करो। आंख को बंद किया त्यों तस तुम्हारी, तब तक आ गया चांदी का। ये भी चांदी का आया मिस सिल्वर। जब भी चांदी का आया तुरंत और जोर से रोने लगा। तब माँ पूछी बेटे अब किस लिए रो रहा है? तब बोला उस समय बोल रहा था नहीं माँ जब लेंगे तो हम अपना वाला ही टंगली लेंगे। माँ बुझ गई, समझ गई कि ये थोड़ा सा अभी समझी नहीं, बाद में फिर एक पॉइंट है
फिर उसके बाद बोली कि भी ठीक है बेटे, नेक्स्ट टाइम तुम अपने आप को क्या करो, बंद करो। जे भी नेक्स्ट टाइम जब बंद किया तब तक आ गया सोना का। जे भी सोना का आया उसके जस्ट बाद और जोर जोर से रोने लगा। जे भी सोना का देखा जोर जोर से रोने लगा। जब एक उस हमेशा एक ही डायलॉग मारता था, नहीं मां जब लेंगे तो हम अपना वाला ही लेंगे। माँ बोली ठीक है बेटे, नेक्स्ट एंड लास्ट आई को बंद करो। नेक्स्ट एंड लास्ट जब भी बंद करवाया तब तक गंगा माँ ने परकट कर दी। फिर उसकी वाला टोंगली आ गया। किसका टोंगली? लोहे। जे भी लोहे का टोंगली उसको मिला, वो बहुत खुशी खुशी गया और उठाकर वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, माँ समझ गई कि बहुत ईमानदार है, इसलिए रुकवाई। सुनो बेटा, सुनो इधर। मैं समझ गई कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारी ईमानदारी के नाते मैं तुम्हें दो टोंगली यानी गिफ्ट में देता हूं। किसमें देता हूं? गिफ्ट में। एक आपका चांदी का, एक कौन चीज का? सोने का, क्योंकि लोहा का तो अपना था। और ये सारी बातें जाकर अपनी कहानी अपनी मैडम यानी वाइफ से बोला। और थोड़ा सा मेरे अनुसार वाइफ थोड़ा सा ग्रीडी टाइप की होती है यानी दैट इज कॉल्ड लालची, लोभी या लियोर भी बोल सकते हैं। इसके लिए आप दूसरा वर्ड लियोर भी बोल सकते हैं, तीसरा वर्ड इंटाइस भी लगा सकते हैं। ग्रीडी टाइप की होती है, ओवर ग्रीडी होती है। इंटाइस, लियोर सबका मतलब होता है। ये सारी बातें जाकर कहानी अपनी पत्नी से सुनाया। जे भी पत्नी सारी कहानियां को सुनी, वो पूरा एक्साइटेड थी कब सुबह हो कि हम भी चले वहां, कुछ और मिल जाए। और जे भी अभी डाउन में सोता है DAWN, जब भी भोर हुआ उसके बाद तुरंत टोंगली ली, उसका हस्बैंड सोया हुआ था और लेकर चले गए उस पेड़ के पास और उस पेड़ पर चढ़ गए। खुदा ना खाते औरत तो पेड़ पर चढ़ती नहीं है। बाय द वे वहीं उसमें गिर गई, पानी में जेवी गिरी और उसमें गुम हो गई। जेवी गुम हो गई। जब सुबह को लकड़हारा उठा तो देखा कि मेरी वाइफ नहीं है। अगल बगल ढूंढा, फिर अगल बगल से पूछा, अपने पड़ोसी से पूछा, आपने मेरी वाइफ को देखा है? उस समय ने बता दिया कुछ हमने देखा होगा था, वहां देखे थे टोंगली लेकर जा रही थी। समझ गया बंदा की कहानी क्या है। और जाकर फिर गया उसी पेड़ के पास जहां से इसको सोने के टोंगली और चांदी का टोंगली मिला हुआ। गया और पानी में ढूंढने लगा। जे भी ढूंढ रहा था, फिर मां प्रकट हुई। बोली अब बेटी किस लिए रो रहा है, क्या ढूंढ रहा है? तो बोला माँ पहली बार तो मेरी टोंगली गुम हो गई थी, अब की बार मेरी वाइफ भी गुम हो गई है। ये बोली, माँ बोली क्या लगा रखा है, कभी टोंगली गुम करवाता है, कभी वाइफ को। ठीक है, अपने आंख को बंद करो। माँ तो माँ होती है और गंग। उसी समय आलिया भट्ट आ गई। आंख बंद की और बोली कि आलिया भट्ट आ गई। उसने देखा तो बोला ना ये मेरी वाइफ नहीं है। और गंगा माँ तो समझती थी इसकी पूरी हरकतों को। उसके बाद बोले ठीक है बेटे, फिर सेकेंड टाइम आंख बंद करो। सेकेंड टाइम बंद किए तब तक ऐश्वर्या बच्चन आ गई। ऐश्वर्या बच्चन आ गई। जब ऐश्वर्या बच्चन आई तब तक होता है हाँ यही मेरी वाइफ है। माँ कंफ्यूजन में हो गई। माँ बोली कि इसके जैसा तो मैं बहुत सारा ऐश्वर्या राय बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ईमानदारी के नाते मैंने तुम्हें पहले 2 टोंगलियां गिफ्ट में दिया था, फिर इस समय तुमने दूसरे की वाइफ को कैसे बोल दिया कि ऐश्वर्या राय ही मेरी पत्नी है? तो बोले, उसने बताया, लकड़हारा ने बोला माँ ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए सपोर्ट डेट अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट करता ऐश्वर्या राय को, तो फिर थर्ड पॉइंट में आप मेरी वाली पत्नी को लाते, तो आप मेरी ईमानदारी के नाते हम इसको लेकर अपनी पत्नी को जाते, तो आप वो फिर कहती आप तो बहुत ईमानदार हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी के नाते 2 पत्नियां गिफ्ट में देता हूं। एक पत्नी को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, 3 पत्नियां तो कहां से खिलाऊंगा? इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती से दूसरे को पत्नी को क्या बोल दिया, मेरी पत्नी। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा सांस ले लीजिए। There are some rules for difference between assessment and evaluation are discussed here. First is that assessment is concerned with process.
असेसमेंट जो होती है यानी आकलन जो होती है वो एक प्रक्रिया होती है। एंड व्हाइल इवैल्यूएशन इज द evaluation are the focus on product. And second point is that as the process of assessment is formative to increase quality, while evaluation is all judging about the quality, therefore process of summative. And third point is that assessment is diagnostic in nature as it intends to identify areas to improvement, and evaluation is judgment because it aims at provide overall grading. And fourth point is that assessment provides feedback on performance and ways to enhance performance in future. And after that, whether evaluation as certain whether the standards met or not. Next and last point, in a assessment the feedback based on the observation and feedback based on negative points and positive points, while evaluation in which the feedback relies on the guilty. As you noted before time, there are two types of assessment. First is that FA and second is that essay. There are some rules for assessment of learning is called summative assessment, and second is that assessment for learning is called formative assessment. यानी सीखने के लिए सीखने का आकलन. And third point is that belong to assessment as learning is equal to self assessment, सीखने के रूप में. Now I would like to call about CCEB in the full form सतत मूल्यांकन और व्यापक. राष्ट्रीय शिक्षा के नीति के अनुसार सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू में शामिल है, जो शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए तत्पर होता है. ये इवैल्यूएशन जो है आपका असेसमेंट यानी आकलन जो होता है आपका क्वांटिटी होता है, जबकि इवैल्यूएशन जो होता है आपका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरफ से होता है. नेक्स्ट है मूल्यांकन की विशेषता. मूल्यांकन की विशेषता वैलिडिटी. वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात को परीक्षण करे जिसके बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं. इसमें आ जाता है आपको विश्वसनीयता आ जाता है, जिसको रियलिटी भी बोल सकते हैं. विभिन्न परंतु एक ऐसी परिस्थितियों में है जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं तथा उसका उत्तर हम अपने बच्चे से पूछ सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दैट प्रैक्टिकली मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जो लगातार समय में प्रयोग सरलता की दृष्टि से किया जाता है और व्यवहारिक कुशल होती है. वस्तुनिष्ठता यानी नेक्स्ट है पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो वह एक प्रकार की फाइल है जिसके माध्यम से बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों को हम कलेक्शन करके उसके बारे में क्या करते हैं बतलाते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज दैट इसमें बच्चों की उपलब्धियां, प्रगति और कमियां को भी रखा जाता है. किसके माध्यम से? पोर्टफोलियो का. एंड थर्ड पॉइंट इज दैट पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती है. बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके ग्रेडिंग के बारे में भी हम पोर्टफोलियो के माध्यम से भी जान सकते हैं. एंड देन क्या होता है? क्या पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बता चुके हैं. पोर्टफोलियो बात में समझ लीजिए. बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का एक उद्देश्य होता है. बच्चों के इस पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चा क्या उसमें आगे की तरफ प्रोग्रेस है कि नहीं. अगर बच्चे की तरफ आगे की प्रोग्रेस है तो उसको ग्रेडिंग के माध्यम से हम बच्चे को समझा सकते हैं. अगर कोई अच्छा प्रतिभाशाली है जिसका आईक्यू अगर 80 से नीचे है तो उसको नॉर्मल में रख सकते हैं. अगर 120 से अगर ऊपर हो तो उसको हम प्रतिभाशाली यानी ब्रिलियंट के माध्यम से उसको रख सकते हैं. इस सब को जानने के लिए हमको सबसे पहले पोर्टफोलियो को बनाना जरूरी होता है. अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं.
and then after record now point belong to record. इसमें बच्चे सभी तरह के रिकॉर्ड रखे हैं, बच्चे का सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, उसका स्किल यानी हुनर क्या है, एंड देन आफ्टर एटीट्यूड उसका रवैया क्या है, और देन आफ्टर उसके बाद वो कैसा बिहेवियर करता है, अच्छे अपने दोस्तों के साथ शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है कि नहीं करता है, इसको रिकॉर्ड के मामले से हम जान सकते हैं। That's all. That's enough for today. Many thanks all of you.